हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस का आज जो हम चैप्टर करेंगे इंट्रोडक्शन टू और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावना। यानी इंट्रो हम करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये पुराने समय के हर एक जो विषय के बारे में चर्चा करेंगे और हर के साथ जो सोशल साइंस का संबंध है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next here, use of metal is a calothatics as. There is the most important as here, calothatics as. Human had come long way from their food gathering and stone implement days. Let there were not certified. Soon they discover a metal is called copper, and this period is now come to be called calothatics as. In this age, a people began to use a copper making implements. Do you remember reading that in order to make a clay pottery is a clear human use of fire? It is used to till today in the form of furnaces. Is a copper was a first metal to be melted by heat in order to make implements. Here show the metal weapon. This metal weapon is the most important for the hunting. You know that their skill is the most important on this period time. The copper here, a weapon, there is a very sharp and very important for the hunting of animals. As the early humans started discovering new materials, they started to experimenting with them. Copper was a mix with the other metal like zinc, tin, and lead to be produce a bronze. The age in which the people started to using a bronze come to be called bronze age. The tool made of metal provide to be a much more effective than to early stone implements. The metallic is a naps and the axe is a helpful in cutting down to tree and more land be a clear for agriculture. The period went to the human use of both metal and a small piece of stone. It's called calothatics age. Implement this age of has been to found to the Brahmagiri in Mysore. And Navasthal is near Narmada river as well as the Chota Nagpur plateaus. If you happen to be anywhere near this area, try to see the excavated site and make a note. There is the most important activity here, and compare this information with any other site which you might have seen or read. The next year, beginning of community of life. Beginning of community of life, agriculture, mixed farming, development of tool and discovery of wheels is all lead to be a shuttle life, which we may be a call to the beginning of village life. By now, the group of human beings that had shuttled together had become a larger, and a large group of needed to someone who could maintain a law, order, and some discipline here. So it was a natural that is those one such a person amongst themselves there is a who could be lead them.
The various groups are decided their own method of choosing to the leader. The leader was a more often to oldest person in the group and sometimes it could be a stronger person in the community. The leader is a looking after the law and order of settlement. If you discharge or use between is any two member of group, the leader would be act as the mediator. Gradually, this settlement become even larger. Town and city started to coming up. Do you know that is an area around to the river Saraswati and Indo where is a place where the first Indian site come up around 2500 BC. It was the Indo Valley civilization. The Indo Valley civilization is called Indo Saraswati civilization by some historians after the discovery of site in Harappa. The next year, religion. Human beings all over to the world have a fear of unknown. Any event which was not understood by them was held in a way and the soon become scared. The same has happened with the early human. The earth is assumed their status of mother figure, which provide food for all living beings. Here, children. The sun is a given life and warmth. It was also a resourcing is after the dark night. It was the same for a moon, star, and rain, etc. People started to worship them, and they started to the sacrificial rite, and their rank soon is a fragile thing, a natural object. There was a magic is a platinarian who is claiming they could be a prevent a people from a coming to be harmed by them. And some individuals are decided to perform sacrificial rites and the pray for a community. Such a person come to be now a priest. That is important. The people had realized that his death was a journey from which people is a never a return. So they began to follow their practice of making graves for avoiding their dead. And they covered the graves with a large stone called the megalithics and sometimes various articles of everyday use were also placed keeping in mind the requirement of dead on their last journey. Does it strike you that is a reverse for the departing Israel is a practice even today? In fact, you will be surprised to see how many things we have in common with our center. That is important. The next year, Iron Age as we went. Iron Age is the most important as you have learned human culture and civilization was undergoes to several phases of the development. The early human beings are started to making a tool with the stone. Later human beings is a discovered to metal which provide to the more useful for making a tool. The copper, bronze and the iron were discovered in their very is a chronological order. That is important. The discovery of iron is a very important landmark in human civilization. It's a help to making a tool that were more lasting and durable. Later other materials come to be used. People learn to make alloys. The alloys is very important, a mix to the one and another element to the each other, which are made up to two or more metals of fixed ratio. That is called alloys. Brass is an example of alloys. Brass is an example of alloys. The alloys is a mix of two or more metal for each other. Then we learn how to make a steel and adding to carbon to iron. And much later, a modern science give us a very useful material called plastic. The plastic is a still used for making all kind of tool and the object of everyday use. It has a many advantages over to materials. However, letting it is has been to found to have a negative impact on our environment and therefore use to begin restricted. I am sure you have heard about their ban of plastic bag. The scientists are now trying to discover a biodegradable plastic. Biodegradable plastic is the most important. So you must realize that is every age of human development present is a set of challenges. And these have to be addressed as a human
as involved the next stage. Let us now study the very stage of human development. पश्चात धातु का प्रयोग भी मनुष्य के जीवन में बहुत काफ़ी बदलाव ला दिया। धातु युग मनुष्य के खाना इकट्ठा करने से लेकर पाषाण युग से काफ़ी आगे आ चुका था। कहते फिर भी वह संतुष्ट नहीं था, क्योंकि शीघ्र ही उन्होंने तांबे की खोज भी की और यह युग जो है धातु युग कहलाने लगा, क्योंकि धातु का खोज उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इस युग में मनुष्य ने तांबे से सामान बनाना शुरू कर दिया। क्या आप ये पढ़ चुके होंगे कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए आग का इस्तेमाल भी होता था, और यह भी जो है भट्टी के रूप में काम आता था। तांबे वे पहला धातु था जो कि जो है पिघला कर जो है दूसरे चीज़ों को बनाने में काम आया करता था। तो धातु पहला वस्तु है। देखिए ये यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आदि मानव ने पहला धातु किसकी खोज की। तो पहला धातु जो था उनका तांबा था, जिसको उन्होंने पिघला कर दूसरे औजार बनाने सीख लिए थे। देखिए यहाँ पर जो कांसा युग जो है औजार काफ़ी विस्तृत है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके औजार आप देख के भी हैरान हो जाओगे कि ये जो तांबे से बनाए गए थे, कांसे से बनाए गए थे, कितना महत्वपूर्ण था, कितनी तिक्की थी। और इसे जानवरों का जो है खेतों के लिए हर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और ये देखने में भी देखिए कितना जो है अलग दिख रहा है और कितना महत्वपूर्ण दिख रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी इनका जो है धातु की खोज। धातु की खोज ने इनके जीवन में बहुत ही बदलाव करके रख दिया। जैसे जैसे धातु मिलने लगे मनुष्य ने उनके साथ जो है खोजबीन भी शुरू करने लग गए, क्योंकि एक धातु मिला उसके बाद उन्होंने दूसरी धातु की खोज करना शुरू कर दिया। तांबे के दूसरे धातुओं के साथ मिलाकर, जैसे कि जस्ता, लोहा और तांबे का मिश्रण करके वो कांचों को तैयार किया। पहले बने औजार की तुलना में इन धातुओं से बने औजार ज़्यादा फायदेमंद साबित हुए, और लोहे के बने कुल्हाड़ी और चाकू ज़्यादा जल्दी पेड़ काटने तक जो है कृषि काम आने लग गए। तो कहते हैं जैसे जैसे उनकी समझ बढ़ी वैसे वैसे उन्होंने जो है हर एक जो है चीज़ों का इस्तेमाल करना बेखूबी सीख लिया। कहते हैं आज मनुष्य ये समझता है कि हमने जो है मिश्र धातु का निर्माण किया, लेकिन शायद उनको नॉलेज नहीं है कि पुरातन समय से ये कार्य पद्धति चलती आ रही है। जब मनुष्य लोहे और पत्थर के मिले जुले जो है औजार का प्रयोग करने लगे तो यह युग जो है लोह युग कहलाने लग गया, क्योंकि लोहे का इस युग में खोज हुई, इसलिए ये युग जो है लोहे युग के रूप में जाना जन लगा। इस युग में इस्तेमाल वस्तुओं में हमें ब्रह्मगिरी जो है माई मोर में है, जो है नवाब नौली नज़दीक नर्मदा नदी और छोटा नागपुर में भी मिले। छोटा नागपुर जो है इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण जगह था। अगर आप कभी भी इन जगहों पर जाएं तो उनके बारे में देखें और कुछ जो देखा है आपने, जो पढ़ा है, जो सोचा है, समझा है, उनको वहाँ पर जो है देखें और जानें कि आखिर ये समय इतना विभिन्न क्यों थी। देखा जाए तो जन समूह की शुरुआत, फिर जन समूह का शुरुआत कैसे हुआ। कहते हैं खेती बाड़ी, मिली जुली खेती, औजारों की प्रगति और पहियों की खोज ने मनुष्य एक जगह समूह में रहने लग गया, और इसको हम गांव कहते हैं। यानी जन समूह उन्होंने बनाना सीखा और यह समूह धीरे धीरे बढ़ने लगा। और देखिए बढ़ते बढ़ते आज शहर में विकास हो गया। आने वाला समय में क्या विकास होगा शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस बढ़ते हुए समूह का नियंत्रण में रखने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति विशेष की जरूरत पड़ी जो वहाँ पर जो है कानून और आपस में मिलजुल कर रहने में सहायता करी। तो यहीं से जो है राजनीति विज्ञान का जो है शुरुआत हुई कि जब वो गांव में रहने लग गए तो उन्होंने एक व्यक्ति को जो है कुछ मुखिया बनाया जो पूरे लोगों पर नियंत्रण रख सके, कानून बना सके। अनेक समूह अपने तरीके से अपना नेता चुनने लग गए, और यह नेता ज़्यादातर कोई बुजुर्ग ही हुआ करता था जिसके पास बहुत काफ़ी तजुर्बा हुआ करता था, क्योंकि हर क्षेत्र में वो उनकी मदद किया करते थे। और ये नेता ही सबका जो है ख्याल भी रखा करता था। अगर कभी दो लोगों में कोई मतभेद होता था तो ये नेता ही उनको सुलझाया किया करते थे। और धीरे धीरे यह सब जो है समूह बढ़ता गया, तब नगर जो है शहर बनने लग गए। और आज देखिए उन्हीं का आज जो सोच विचार है जो कि नगरों में विकास हो गया। क्या आप ये बात जानते हैं कि सबसे पहला कस्बा सरस्वती और सिंध में जो है सन 2500 ईसा पूर्व में बनाया गया। देखिए यूपीएससी एग्जाम क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि पहला कस्बा कहाँ बनाया गया। पहला कस्बा सरस्वती और सिंधु में सन 2500 ईस्वी पूर्व में बनाया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, और इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा की खोज से आप भली भांति परिचित ही होंगे, तो समझ सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। उसके पश्चात धर्म। कहते हैं पूरे विश्व में मनुष्य को अनहोनी का भय लगा ही रहता है,
और कोई भी ऐसा हादसा जो उसके समझ से बाहर था उसको वो बड़े आश्चर्य और हैरानी से देखा करता था। ज़मीन में एक माँ का रूप ने लिया था, क्योंकि ज़मीन एक माँ का रूप ले लिया था, क्योंकि आपको पता है ज़मीन से उनको उपज मिलती थी, इसलिए वो उसको माँ कहा करते थे, जो अपने बच्चों के लिए खाना पीना देती थी। सूर्य हमें जिंदगी और गर्मी देता था, रात के अंधेरे में रोशनी देता था। इसी प्रकार चांद, तारे, बारिश के बारे में भी उनको बहुत काफ़ी उन्होंने जो है इन चीज़ों को पूजनीय बना दिया, और ये लोग उनके लिए जो है कुर्बानी देने लग गए, उनका सम्मान भी गीत गाने लग गए। आपने देखा होगा कई जगह बलि प्रथा चलाई गई है, कई जगह गीत गाने का प्रावधान है, तो ये सब पुराने समय से लिया गया ही प्रावधान है। कई जगह तो बलि प्रथा आज भी, जो कि हम 21वीं शताब्दी में आ रखे हैं, यहाँ भी प्रचलित है। और गीत गाने के जो कहते हैं अपने अपने देश के भाषा में गाना गाना, ये भी एक आम बात है। ऐसे कुछ इंसान जादू टोना करने वाले उभरे जो यह कहते थे कि वे अपने जादू टोने से लोगों की मदद भी कर सकते हैं, यानी उसी तरह जादू टोने वाले लोगों का भी विकास हुआ। कहते हैं कुछ लोग जो होते हैं जादू टोना दिखाते हैं, आपको लगता है कि वो बहुत बड़े जो है चमत्कारी बाबा बन गए हैं। आज वही इंसान जादू टोना करके आपको जो है काफ़ी भयभीत करते हैं, और आप लोग भी पागलों की तरह उनके पास चले जाते हो। वो कोई महान नहीं है, उन्होंने कुछ जादू टोना सीख लिया है और वही आपको दिखाते हैं, तो आप लोग हैरानी में पड़ जाती हो। और ये ऐसी बात देखोगे तो गांव में आम है, गांव में चले जाओ, इससे भी अच्छे अच्छे आपको जो है जादूगर दिख जाएंगे। कुछ लोगों ने कुर्बानी भी दी, कहते हैं इन बाबाओं कहने पर कितने लोगों ने कुर्बानी भी दी, जादू टोना के कारण कई कुर्बान भी हुआ। और इवन ये पुराने समय की बात छोड़िए, आज के समय में भी विकसित है। कोई आपको बाबा साधु संत कहेंगे कि आप इसकी कुर्बानी दो, आप बिना सोचे समझे जो है 21वीं शताब्दी में होते हुए भी आप जो कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओगे। जनता समूह की मदद करने के लिए पूजा पाठ करने लगे, और ये लोग पीड़ित जो है पंडित कहलाने लगे, और उसमें पंडित का भी जो है विकास जो है देखने को मिला। लोग यह जान गए थे कि मृत्यु एक ऐसा सफ़र था जहाँ से कोई जिंदा वापस लौट के नहीं आता है। उन्होंने मरे हुए लोगों के लिए कब्र खोदनी शुरू कर दी, और ऐसी कब्र जो ढक कर रखने के लिए बड़े पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसको हम मेगाथलिस्क भी कहते हैं। कभी कभी ऐसी चीज़ें जो कि रोज़ के काम आती थी कब्र में भी रखे गए कि शायद वो अगले जन्म में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये उनकी सोच थी। कहते चलिए वो इतना समझ नहीं थी, इतना सभ्य नहीं थे, इसलिए उनकी सोच थी। लेकिन आज के लोग भी तो पुण्य जन्म पे विश्वास कर रहे हैं, कहते हैं यहाँ पर जो दान करोगे अगले जन्म में तुम्हें काम आएगा। पता नहीं क्या सच्चाई इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी पुराने समय की अभी भी पद्धतियाँ जो है हमारे समाज में विद्यमान है। क्या आपको जानना है कि तरीका आज के युग में भी होती है? आज को बहुत ही हैरानी होगी कि आज भी हमारी कई चीज़ें ऐसी है जो हमारे पूर्वजों से मिलती जुलती बिल्कुल ही नज़र आ रही है। कहते हैं अगर लोह युग और आग की बात करें तो कहते हैं लोह युग और आगे काफ़ी महत्वपूर्ण था, कि जैसे कि आपने पढ़ा है कि सीखा है कि मनुष्य की सभ्यता और सभ्य रहने के तौर तरीक़ों में काफ़ी विकास हुआ। कहते हैं पूर्व युग में मनुष्य ने औजारों के पत्थर से बनाया, यानी उन्होंने जो है पूर्व युग में मनुष्य ने औजारों को पत्थर से बनाया, जो कि बहुत काफ़ी तेज़ और काफ़ी सटीक थी। बाद में लोहे की खोज से यही औजार ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने लग गए, यानी लोहे की खोज ने इनको बहुत कुछ जो है फ़ायदेमंद में बदल दिया। कहते हैं तांबे, कांसा, लोहे की खोज क्रमश होती ही चली गई। कहते हैं जब कोई नई चीज़ बनती है तो हमें और जिज्ञासा होने लग जाती है कि आगे क्या होगा। तो इसी चीज़ ने, उनकी जिज्ञासा ने उनको है तांबा, कांसा, लोहे की खोज करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं लोहे की खोज मनुष्य की प्रगति की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी बनी, क्योंकि लोहे की खोज आपको पता है कि आज के समय में लोहा कितना महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें लोहे का उपयोग न हुआ हो। इससे बने हुए औजार ज़्यादा मजबूत और देर तक चलने वाले थे। तो ये औजार जो थे काफ़ी महत्वपूर्ण बन गए पुराने समय में भी, और बाद में और धातु का इस्तेमाल होने लग गए। लोग दो धातुओं को मिलाकर एक अन्य धातु बनाने लगे, जिसे मिश्र धातु आप कहते हो, यानी उन्होंने अलॉयस बनाना शुरू कर दिया। कहते पीतल इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। उसके बाद हमने स्टील, कार्बन और लोहे को मिलाकर एक नया धातु निर्माण किया। आपने पीरियोडिक टेबल ही पढ़ा होगा, उसमें पहले जो तत्व की खोज नहीं हुई थी, आगे चल के बहुत से तत्व की खोज हुई। तो सोचिए जैसे आदि मानव हुआ करते थे, जैसे पुराने समय में लोग हुआ करते थे, हम भी तो उसी प्रकार से खोज कर रहे हैं। कहते हैं प्लास्टिक का निर्माण भी हुआ, और प्लास्टिक का इस्तेमाल अब भी और औजार और जो है वस्तुओं को बनाने में काम आने लग गया, और यह दूसरे धातुओं से ज़्यादा जो है भरोसेमंद हुआ,
क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक जो है कभी ख़त्म न होने वाली वस्तु है, जिसको आप एक बार बना दोगे तो फिर इसको नष्ट करना संभव नहीं रह जाता है। तो प्लास्टिक उनके जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और आज के जीवन में भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ये प्लास्टिक जो है कोई भी जो है छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं सकता, क्योंकि प्लास्टिक आज हर एक रूप में आपके घर में उपलब्ध है। प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारे वातावरण पर जो है गलत प्रभाव डालने लगी, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक जो है नष्ट नहीं होने वाले पदार्थ है, जो कि हमारे वातावरण पर काफ़ी प्रभाव जो है डालने लगा, इसलिए इसका प्रयोग अब कम होने लगा है। आपको प्लास्टिक के बने बैग पर पाबंदी लगाने की बात तो मालूम ही होगी। आपको पता है कि भारत में कई क्षेत्र में जो है प्लास्टिक पर बैन लगी हुई है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। लेकिन शायद ये जान के हैरानी होगी कि जिस राज्य में प्लास्टिक बैन की गई है उस राज्य में जो है प्लास्टिक धड़ल्ले से चलाई जा रही है और इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बैन तो सिर्फ कहते हैं नाम मात्र का होता है। कोई भी चीज़ जो होता है आज के समय में सिर्फ नाम मात्र का होता है, क्योंकि आपको पता है कि सभी को जो है अगर इतना बड़ा फैक्ट्री प्लास्टिक का वो लोग बंद कर देंगे तो कहते हैं उनका जो है इलेक्शन में पैसा कहाँ से आएगा। कहते हैं क्योंकि आज के लोग जो है डिफरेंट टाइप के हैं। पुराने समय के लोग सिर्फ आवश्यकता के अनुसार चलते थे, लेकिन आज के समय के लोग जो हैं आवश्यकता से आगे चलते हैं। वो सोचते हैं कि सब कुछ कैसे मेरे पास आ जाए। तो पाबंदी होने के बावजूद भी वो फैक्ट्री कभी बंद होती नहीं है, सिर्फ बैन कर दी जाती है कागज़ों में। तो ये आपको जान के हैरानी रहेगी। कहते हैं वैज्ञानिक ऐसे प्लास्टिक खोज कर रहे हैं जिसके हमारे पर्यावरण पर गलत असर न पड़े। तो कहते हैं आप जान गए होंगे कि मनुष्य की हर खोज एक चुनौती छोड़ जाती है और इसमें कोई दो राय नहीं। शायद आने वाला समय में प्लास्टिक का भी जो है हम बेखूबी जो है नष्ट कर सकती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि कहते हैं मनुष्य के जो है चुनौतियाँ हमेशा बनी रही है और चुनौतियों से आगे निकलना मनुष्य का स्वभाव था और यही एक चुनौती हमारे आगे बढ़ने में सम्मिलित होती है। और इसके बारे में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे और उसके विस्तार पूर्वक और भी चर्चा करेंगे इसके आगे का टॉपिक। तो आप इसी तरह त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ बने रहें। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, सारे आपने युगों के जो है समय काल के बारे में अगर समझ में अच्छे से आया है, तो आपका भी फर्ज बन जाता है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आपका भी दायित्व है कि त्रिपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और त्रिपान स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये वीडियो जो है हर एक बच्चे तक पहुँचे, और पहुँचेगा तभी वो ज्ञान हासिल कर सकेंगे। क्योंकि एक बात आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन रटने से आपको नहीं समझ आएगा। आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में रट के जाओगे, सारे एग्ज़ाम में आप भूल जाओगे, लेकिन समझा हुआ बात कभी नहीं भूलोगे और वो आपको जीवन तक याद रहेगा। इसलिए क्वेश्चनों को नहीं रटो, चैप्टरों को समझो। चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए आपको सब कुछ आ गया। और चैप्टर बच्चे कैसे समझेंगे? जब आप उनको जो है ये वीडियो उन तक फॉरवर्ड करोगे। अब फॉरवर्ड करने के लिए क्या करना है? यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जो आपके कॉन्टैक्ट में होंगे उनको ये वीडियो मिल जाएगा, और जो पढ़ते होंगे जिनके सिलेबस में ये टॉपिक होगा वो बेखूबी देखेंगे ही देखेंगे, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद आने वाला जो है वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त ना हो पाए। ठीक है, अगर आप सोचिएगा ये बात कि मैं एक बार देख लेता हूँ वीडियो, कोई बात नहीं, दोबारा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो शायद आप गलत सोच रहे हो। आपको पता है कि त्रिपान सेंटर जो है 8th क्लास से लेके MA तक की बड़ी बच्चों के लिए अग्रसर है, और ये बेखूबी आपको जो है इसके प्लेलिस्ट में भी नज़र आ रहा होगा। ये सारे वीडियो जो है MA तक 8th क्लास से MA तक के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर उपलब्ध है। ठीक है, अगर कुछ ढूंढने में आपको असुविधा हो रहा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके यहाँ सारे वीडियो ढूंढ सकते हो, जहाँ जो है लेसन वाइज, चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज आपको नज़र हर क्षेत्र में आएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ कमेंट करना है, कुछ बात रखना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, ठीक है, कुछ इसमें बदलाव चाहते हो, तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा।